नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं तपस्वी आचार्य। हमारा उद्देश्य राष्ट्र से स्नेह और राष्ट्र का सम्मान। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही रोचक विषय लेके आपके पास आया हूं। बात करनी है 1G से 5G तक की सफ़र की। कैसे बदली टेक्निक और कैसे बदला तकनीक का आने वाला समय। मित्रों, फ़ोन और हमारा रिश्ता काफ़ी पुराना है और उतना ही मजबूत भी माना जाता है। जहां पहले के फ़ोन वायर वाले हुआ करते थे, फिर एक बार कोडलेस का ज़माना आया और अब वायरलेस फ़ोन का ज़माना आ गया है। एक दौर की बात करें तो पहले के बेसिक फ़ोन की जगह अब जनरेशन के लोगों ने स्मार्टफोन अपना लिया है और स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन के इस बदलते हुए रूप रंग के साथ उसकी जनरेशन भी जुड़ी हुई है। आज बात करनी है मोबाइल टेक्नोलॉजी की, जो कि 1G से 4G का सफ़र तो तय कर चुके हैं और अब आगे 5G की जो 5G की बात करें तो उसकी सफ़र के बारे में हम लोगों को आज बात करनी है और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी देनी है। जानना काफ़ी रोचक हो सकता है कि ये आने वाली 5G क्या है, इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे अभी काम करेगा और टेक्नोलॉजी में क्या क्या नया बदलाव आने वाला है। मैं क्या बदलाव आ सकते हैं आगे बात तो करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बाइट दिखाना चाहूँगा, एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिससे हम लोगों को आगे का पता चले। India, a country with 116 crore telecom subscribers, has the second largest user base in the entire world. Since 2014, the broadband subscriber base has increased by 1,200% to 79 crores, and the average data consumption per user has grown more than 20-fold. On the clarion call of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, India has recently demonstrated Atmanirbhar 4G capability. As we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, it is time for a qualitative leap forward to shape the future of telecommunications in India and the world. Towards this, we have taken several steps to develop the entire 5G ecosystem within India. In an effort to nurture talent, Department of Telecommunications conducted a 5G hackathon where startups were given an opportunity to showcase their innovations. To improve rural 5G coverage, new enhanced wireless standards called 5GI and LMLC were developed jointly by Indian academia and industry. These enhanced standards are now part of the global 5G standard. बजट में इसी साल 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन को लेकर बहुत स्पष्ट रोडमैप बताया गया है। देश में स्ट्रॉन्ग 5G इकोसिस्टम ने इसे जुड़ी हुई डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बजट में PLI स्कीम्स प्रपोज की गई है। Till now, India did not have a testing facility, and hence startups and companies had to go abroad. With a fund of 224 crore rupees, more than 300 engineers and 40 scientists across 8 institutes collaborated to develop a complete end-to-end 5G testbed facility. The testbed has all the components of the 5G network, ranging from the antennas, radios, the base stations, to the core network at the heart of the systems. The testbed provides full capability to support and test IoT applications such as autonomous vehicles, smart sensors, remote robotics and the like. The testbed supports Indian industry and startups to test and validate their 5G products, solutions and use cases. It will also help build human resource capacity for 5G in the country. In a quest for Atmanirbhar 5G technology, the institutes building the testbed took a further leap to develop a secure, indigenous 5G network solution for licensing,
and manufacturing in India. It is a fitting testimony to the abilities of India at 75 that the entire hardware and software for the solution has been designed and successfully developed by our young engineers spread across the country. Over the coming years, the solution will meet India's needs indigenously and securely. With this strong foundation towards Atmanirbhar 5G, India is now poised to play a leading role in shaping the future of telecom technology as it marches towards 6G. It is indeed a great privilege for all of us that the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is dedicating the 5G test bed today. तो मित्रों, आज इंटरनेट की दुनिया की आगे की बात करें तो इंटरनेट की दुनिया में कई बदलाव देखे गए। पहले यूज़र्स 1G का इस्तेमाल करते थे और अब 4G का यूज़ करने लग गए हैं। 1G से 4G तक का सफ़र न सिर्फ इंटरनेट दुनिया के लिए बल्कि यूज़र्स के लिए भी काफ़ी बदलाव लेकर आया हुआ है। 4G तकनीक के यूज़र्स को इंटरनेट पहले से ज़्यादा तेज़ इस्तेमाल करने का मौका दिया गया और अब भारत में जल्द ही 5G भी दस्तक देने लग गया है। तब हम सभी 5G की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको 1G, 2G, 3G, 4G और 5G का असली मतलब हम लोगों को पता है? जाहिर है कि कई लोगों को इसके बारे में थोड़ी नॉलेज कम हो या थोड़ा नॉलेज कम हो, लेकिन पता लगाना भी खूब ज़रूरी हो गया है। इसके चलते आज हम जो बात करने जा रहे हैं और आपके लिए ये जानकारी लेके आए हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 1G, 2G, 3G या फिर 5G का मतलब बताने जाएंगे और लेकिन थोड़ा और जानकारी के लिए हम जो बात करने जाए तो हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनना चाहेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल वीडियो तैयार किया हुआ है। मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगा कि सबसे पहले वो नरेंद्र मोदी का एक भाषण सुनाया जाए। कि बुनियाद का काम करेंगे, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, 5G टेक्नोलॉजी भी देश की गवर्नेंस में, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन अनेक विषयों में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। अनुमान है कि आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। यानी ये सिर्फ इंटरनेट की गति नहीं, बल्कि प्रगति और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गति को भी बढ़ाने वाला है। इसलिए 5G तेजी से रोल आउट हो, इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों को कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। इस दशक के अंत तक हम 6G सर्विस भी लॉन्च कर पाए, इसके लिए भी हमारी टास्क फोर्स काम करना शुरू कर चुकी है। साथियों, हमारा प्रयास है कि टेलीकॉम सेक्टर और 5G टेक्नोलॉजी में हमारे स्टार्टअप्स तेजी से तैयार हो, ग्लोबल चैंपियन बने। हम अनेक सेक्टर्स में दुनिया के एक बड़े डिजाइन पावर हाउस है। टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट में भी
भारत के डिजाइन चैंपियंस का सामर्थ्य हम सभी जानते हैं। अब इसके लिए जरूरी R&D इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर हमारा विशेष फोकस है और इसमें आप सबकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आत्मनिर्भरता और स्वस्थ स्पर्धा कैसे समाज में, अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करती है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हम सब गर्व से कह सकते हैं हमारा टेलीकॉम सेक्टर है। हम जरा पुरानी तरफ नजर करें। 2G का काल, 2G का काल यानी निराशा, हताशा, करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस, और आज उस कालखंड से बाहर निकलकर देश ने 3G से 4G और अब 5G और 6G तक की तरफ तेजी से तो मित्रों, देखा देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे कि पहले के समय कैसा था। कभी कागज में पैगाम लिखकर उसे डाक से पोस्ट किया जाता था, लेकिन आज बस फोन के 2 बटन दबाते ही पैगाम दूसरे तक इजीली पहुंच जाता है। पोस्ट तो पहुंचने में कई दिनों लगाता था और समय लेता था, लेकिन मोबाइल से मैसेज बिना सेकंड देर किए हुए मिल जाता है। जब कभी आपके जहन में भी यह आता होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे संभव हुई, तो आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो हेनरिक हर्ट्ज को। आगे एक डिटेल में दूं तो 1864 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल द्वारा माइक्रोवेव की प्रतिलेख की एक खोज की गई थी। 1864 में अपने समीकरणों के इस्तेमाल से पहली बार जेम्स क्लर्क मैक्सवेल माइक्रोवेव्स ने भविष्यवाणी एक की थी। इस थियरी पर 1888 में हेनरिक हर्ट्ज ने इलेक्ट्रॉनिक्स वेव का एक सबसे बड़ा पता लगाया था और इसे सिद्ध किया। बाद में इसी इलेक्ट्रॉनिक वेव पर रेडियो, टीवी और मोबाइल का एक आविष्कार हुआ। आगे एक डिटेल बोलूं तो आगे बात करने से पहले, सबसे पहली बात बोलूं मैं तो आगे बात करने से पहले मैं आपको और एक जानकारी के लिए बोलूं तो 2G से 4G तक का सफ़र का एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। मैं टेक्निकल टीम से बोलूँगा कि मुझे एक वो वीडियो दिखाए जिससे समाज को पता चले। Can you imagine your life without the internet or mobile phones? Probably not. Over the past decade, we have become so dependent on technology that it has become an integral part of our everyday life. The rapid advancement of technology has changed the way the world operates and communicates. And if we look back, we can see how digital technology has driven social change. For instance, if 2G kicked off an era of global communications, 3G and 4G brought us high-speed mobile internet. But now the world is entering into a new era of speed with 5G. The key for mobile services are the radio waves, which we call spectrum as it is known. So it is the decision is taken at global level on which technology should be used for which kind of frequency. So similarly in India we have decided to auction, not yet auction, but there is a recommendation from TRAI to auction frequency band in the range of 3.3 to 3.6 gigahertz. And finally there will be a meeting held at International Telecom Union in 2019 which will freeze what kind of spectrum should be used for 5G services. And once they freeze that this kind of spectrum should be used for 5G services, all the equipment makers will tune their devices to suit that frequency band. Yes, 5G, the next big milestone in telecom technology, is just around the corner, even in India. 5G is the 5th generation of mobile communication networks.
It is believed that the speed of 5G networks will be faster than any technology the world has seen to date. While 4G operates in the 900 MHz band, 5G will operate in higher frequencies, going all the way up to 28 GHz. The coming of 5G mobile technology promises good things for both consumers and businesses, including faster page loads, faster downloads and faster, more reliable live. मित्रों, आज मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मित्रों, ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स का एक आविष्कार हुआ और अभी सभी मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध हो गए, बल्कि शुरुआत में इन इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स की क्षमता काफ़ी सीमित थी। बाद में क्रमबद्ध तरीके से इनका आविष्कार किया गया। आज 4G नेटवर्क जो उपलब्ध हो चुका है और 5G दस्तक दे रहा है दुनिया के देश में, परंतु शुरुआत में जो मोबाइल तकनीकी आई वो इतनी ताकतवर नहीं थी। आगे एक बात करूं, क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी पहले डेवलप नहीं थी, तो लगभग हर 10 साल में मोबाइल नेटवर्क में बदलाव हुआ है। 10 साल में मोबाइल टेक्नोलॉजी भी बदली और मोबाइल नेटवर्क भी बदला। आगे हमने 1G से लेकर 5G तक के सफ़र को विस्तार से बताया है, जिससे कि आप मोबाइल टेक्नोलॉजी को समझ सकें और मैं भी कुछ समझ सकूं। इसलिए एक बात करूं तो 1G मोबाइल टेलीफोन की पहली जनरेशन, अर्थात मैं बात करूं तो पहली पीढ़ी थी। यह प्लानिंग और सिग्नल पर आधारित एक तकनीक थी और इसकी क्षमता बेहद ही कम थी। पहले की बात करें तो उसकी क्षमता बहुत ही मामूली सी थी, ऐसा बोला जा सकता है। सबसे पहले 1980 के आसपास 1G टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया और जापान में निप्पॉन टेलीग्राफ का एक नाम था, टेलीफोन कंपनी थी, जिसे एनटीटी नाम से भी जाना जाता था। ये एनटीटी नाम से जाना गया और उसके बाद सबसे पहले लॉन्च किया था उन्होंने 1980 के दशक में। यह तकनीक काफ़ी लोकप्रिय भी हुई और 1983 में इसे यूएस में लॉन्च किया गया। आगे 1983 के बाद हालांकि मोटरोला कंपनी वहाँ पर बहुत ही सुप्रसिद्ध हुई और मोटरोला कंपनी के मार्टिन कूपर नाम था उसका, और उन्होंने 1973 में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कर लिया। लेकिन 1G की बात करूँ तो 1G का उपयोग 1980 के दशक में सबसे पहले शुरू हुआ। 1G तकनीक का खासकर बायस के लिए ये जो तकनीकी डिटेल दी जाए तो जिसकी क्षमता सिर्फ 2.4 BAPS तक वहाँ पर की गई थी। वो MBPS से लेके KBPS तक की 2.4 की तकनीकी वहाँ पर यूटिलाइज की थी। आपको यह जानकारी भी हैरान ही की तरह लगेगी कि भारत से पहले, सबसे पहले इसका पाकिस्तान में मोबाइल सेवा उपलब्ध हुई थी। अब मैं आपको थोड़ी बहुत और आगे की जानकारी दूं तो 2G नेटवर्क के बारे में थोड़ा बहुत आपकी डिटेल दूं तो पहली बार 1991 में मोबाइल के 2G नेटवर्क का विकास किया गया और इसमें काफ़ी बदलाव भी आया। 1G जहां एनालॉग नेटवर्क था, हाँ मैं भूल नहीं रहा हूं, तो वहां पर एनालॉग नेटवर्क था, वहीं 2G में कि 2G के लिए वहां पर डिजिटल सिग्नल का उपयोग किया गया। हालांकि 2G के लिए 2 तरह के टेक्निक का वहां पर उपयोग किया गया। प्लस साथ ही में आगे की डिटेल बताऊं, जहां फिनलैंड से GSM आधारित एक मोबाइल तकनीक शुरू हुई, वहीं पर टेक्निक जहां पर GSM स्टार्ट हुआ तो US में CDM का एक प्रयोग किया गया और 2G सिग्नल के माध्यम से फ़ोन अब टेक्स्ट मैसेज वहां पर उस समय स्टार्ट हुआ था। पिक्चर मैसेज और मल्टीमीडिया मैसेज भेजने में सक्षम हो गया वहां पर 2G नेटवर्क। वहीं पर बैटरी की खपत में बात करूं तो 1G की अपेक्षा काफ़ी कम करता था, क्योंकि वहां पर बैटरी की खपत बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। उसी के दौरान 2G सेवा में डाटा का भी उपयोग किया जा सकता था, लेकिन यह काफ़ी कम चल रहा था। इसमें डाउनलोड और अपलोड की अधिकतम स्पीड 64 kbps तक ही वहां पर मानी गई थी। हालांकि बाद में इसमें कई सुधार भी हुए, लेकिन और एक डिटेल में आपको बताऊं तो 2.5G और 2.7G भी आप और का इसका अधिकतम बात करूं तो अधिकतम डेटा स्पीड 2.5G से लेके kbps तक भी वहां पर हुआ। भारत में शुरुआत में की दौर की बात करूं तो 2.5G से हुआ था वहां पर ये टेक्नोलॉजी का युग स्टार्ट।
आपको यह जानकारी एक आश्चर्य भी होगा और एक इनोवेटिव भी लगेगी कि ये भारत में पहली टेलीफोन लाइन कोलकाता में डाउनमंड हार्बर उसका नाम था, तो उसके बीच एक स्टार्ट हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ कलकत्ता से, और 1995 में पहला मोबाइल सेवा भी यहीं से एक स्टार्ट हुआ, बहाल हुआ, जिसकी शुरुआत की गई कोलकाता से। कोलकाता के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने यूनियन मिनिस्टर सुखराम को कॉल करके इसकी सबसे पहली शुरुआत भी की। और आगे थोड़ा बढ़ने से पहले मैं एक BSNL की बात करूं तो BSNL ऑफिसर ने बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक वीडियो जारी किया था। तो सबसे पहले मैं टेक्निकल टीम को बोलूंगा कि वो इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी वाला वीडियो जो है वो हमारे दर्शकों को बताएं। The 5G, they have to set up a standard for 5G. So a lot of talk is going on globally for setting up the standards. By standards I mean that what will be the spectrum, what kind of speed they will use. All of that is being talked about. These standards are set by an international agency which is called the International Telecom Union, and it is based in Geneva in Switzerland. India is also a member of this international body, and we are trying to negotiate a spectrum which is convenient to us. But then it is to evolve as a global standard. Everywhere they will use the same kind of spectrum, so that when you go from one country to the other, your phone should work. But I think we are almost there, and the speed, the idea of 5G is to provide a faster speed. They are talking about a range which will be up to 10 Gbps. मित्रों, हमने 1G और 2G के बारे में थोड़ा बहुत समझना चाहा और समझाया, तो अब बात करते हैं 3G नेटवर्क के बारे में। बात करूं तो उस टाइम 2G मोबाइल सर्विस को हर देश अपने अनुसार उपयोग कर रहे थे, लेकिन कोई एक स्टैंडर्ड वहां पर निर्धारित नहीं था। वहीं वर्ष 2000 के बाद 3G नेटवर्क की एक शुरुआत हुई। इसके लिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन IMT 2000 नाम एक स्टैंडर्ड बनाया गया, और हालांकि जापानी कंपनी NTT डोकोमो ने प्री कॉमर्शियल सर्विस लॉन्च कर दी थी, लेकिन वर्ष 2001 में इसे अधिकतर रूप से लॉन्च कर दिया गया था। आगे थोड़ी जानकारी दूं तो इसमें डाटा की स्पीड की शुरुआत 384 kbps से 2 Mbps के बीच की थी। 3G में ये वॉइस कॉल के साथ ही वीडियो कॉल का भी सुविधा वहां पर उपलब्ध थी। डिटेल और थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करें तो वहीं इसमें फाइल ट्रांसफ़र, इंटरनेट, ऑनलाइन, टीवी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 3D गेमिंग और ईमेल सेंड रिसीव जैसे फीचर्स भी उसमें शामिल हो गए थे। 2G तकनीक के मुकाबले 3G तकनीक की खासियत थी कि यह अधिक सुरक्षित भी था, और वहीं 3G तकनीक में कई विकास भी वहां पर किए गए थे। आगे थोड़ी और डिटेल बोलूं तो 3G तकनीक की कई विकास वहां पर किए गए। इसकी अधिकतम डाटा क्षमता 4G Mbps तक की ही थी। मित्रों, अब 4G की वहां पर तब तक शुरुआत हो चुकी थी, तो 4G नेटवर्क अब हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहूँगा जिससे हम लोगों को 4G टेक्नोलॉजी क्या है वो भी थोड़ी बहुत जानकारी मिले। Those were the days when a telephone ring would bring a family together. It was a delight to be able to hear the voice of close ones through the telephone. The telecom industry has been one of the fastest growing technologies that has changed with time. Earlier, consumers had several hindrances: landline phones that wouldn't work for days, delay in voice calling with extremely poor technology. Mobile phone users were once charged for incoming calls as well, and mobile handsets were overtly expensive. Mobile users would think twice before receiving even an incoming call. This was the time of 1G technology, the beginning of wireless telephony. That period existed from 1980 to 1992. However, the speed was limited to 2.4 kbps only. Mobile handsets were bulky and voice quality still needed improvement. 5G is to provide a faster speed. They are talking about a range which will be up to 10 Gbps, which means that if you are watching a film or if you are watching a match, you will see as if almost you are there. HD, high quality, high definition pictures and so on.
The interesting thing about 5G and 4G and all this is that the voice call which we were making earlier and for which we were paying a very heavy amount is virtually free now. You might have come across the 4G phones which the new service providers are giving. They are giving voice call free. They don't charge for the voice call at all. They charge for the data, that how much data you are using. Now, the moment 5G will come, I believe that most of the company will try to switch over to 5G. मित्रों, हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की 2G और 3G। आज अभी हम लोग बात करेंगे 4G के बारे में। आज भारत सहित विश्व भर में 4G का ही बोलबाला चल रहा है। हालांकि इसकी कहानी भी कुछ अजीब ही है। 4G तकनीक की शुरुआत साल आई थिंक 2007 में हुई, और लेकिन इस वक्त यहाँ पर वाईमैक्स नेटवर्क पर टेक्स्ट किया गया था और इसे ITU ने तैयार नहीं किया था। वहीं वर्ष 2008 की बात करूं तो 2008 में ITU ने 4G के लिए IMT एडवांस तकनीक की घोषणा कर दी थी, जो GSM आधारित 4G तकनीक से स्टार्ट हुई। इसके बाद इसमें से विकास देखा गया और विकास देखने के बाद इसमें भी NTT डोकोमो ने पहले 4G नेटवर्क का ट्रायल किया। लेकिन ये ट्रायल किया, इससे के जानकारी के लिए अनुसार पहले अधिकतर रूप से 4G की शुरुआत एक फिनिश कंपनी द्वारा की गई। वहाँ पर फिनिश कंपनी जब पर लॉन्च हुई तो हालांकि भारत में भी BSNL सहित कुछ और ऑपरेटर्स ने वाईमैक्स तकनीक का परीक्षण किया था। लेकिन ये परीक्षण की अपन सबसे पहले बात करें तो परीक्षण के साथ ही साथ में ये पाया गया, और सबसे पहले एयरटेल ने कोलकाता से 4G LTE की शुरुआत कर दी थी। ये शुरुआत इस तरीके से हुई कि रिलायंस जियो ने भारत में 4G की TDD, वहाँ पर बोलते हैं TDD सर्विस लॉन्च की, और कंपनी ने 4G वॉइसलेस को मुहैया किया गया। इसके बाद जो भारत की बात करें तो भारत में 4G का बूम आ गया और 4G वहाँ पर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई। 3G से ज़्यादा 4G नेटवर्क का कवरेज काफ़ी अच्छा माना जा चुका था। वहाँ पर ही 4G में अब और तकनीकी के सुधार किए गए और इसकी क्षमता को बढ़ाया गया। इसकी डाटा क्षमता की लेके बात करें तो डाटा क्षमता के डिफाइन किया गया वहाँ पर और टेक्नोलॉजी, और यदि किसी फ़ोन में Cat 3 सपोर्ट है तो वह 100 Mbps मीन्स 100 Mbps तक की गति से डाटा हस्तांतरण की करने में सक्षम रहेगा। एक और आगे बात में समझाने की कोशिश करूं तो इसी तरफ यदि Cat 4 है तो 150 Mbps, Cat 6 है तो 300 Mbps, Cat 9 है तो 450 Mbps तक की यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूटिलाइज होती है, और यदि Cat 11 है तो 4G नेटवर्क पर 600 Mbps तक की गति से डाटा हस्तांतरण करने की यहाँ पर सक्षम होगा ये नेटवर्क। 600 Mbps की बात करें तो 4G की अधिकतम स्पीड है यहाँ पर, और 4G फ़ोन की खरीदारी से पहले इन 5 बातों को याद रखना और ज़रूर से इसको इस्तेमाल करने के तरीके भी याद रखना बहुत ही ज़रूरत हो जाता है। अब बात करते हैं 5G नेटवर्क की, क्योंकि अभी का मामला जो चल रहा है वो 5G नेटवर्क का चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं एक समझने वाली मैं आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहूँगा जिससे हम लोगों को पता चले कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है और ये किस तरीके से काम करेगी। According to researchers, 5G connections could be around 3 times faster than 4G networks, which should result in more devices being able to connect to a network offering fast and smooth data transmissions. As early as 2008, NASA formulated a partnership with the Machine-to-Machine Intelligence Core, a platform for M2M and IoT development. मित्रों, हम लोग थोड़ी बहुत डिटेल समझी कि 3G टेक्नोलॉजी क्या थी, 4G टेक्नोलॉजी क्या थी। अब हम बात कर रहे हैं 5G, क्योंकि अब 5G टेक्नोलॉजी का ज़माना स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट ऑलमोस्ट हो गया है ऐसा हम बोल सकते हैं।
हालांकि यह कहा जाता है कि भारत तकनीक की मामले में दूसरे देशों के काफ़ी पीछे था और पीछे है। यह लगभग 15 साल देरी से मोबाइल सर्विस आई और 3G सर्विस में भी हम लोग लगभग 10 साल पीछे थे, ऐसा बोला जा सकता है। यूरोपियन देशों ने 2001 में ही 3G सर्विस लॉन्च करना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत में 2011 के बाद यह सर्विस स्टार्ट हुई। आगे बात करें तो 2011 में ये सर्विस स्टार्ट हुई। हाल ही में 3GPP में विश्व भर में 5G नेटवर्क के लिए लोगो सहित टावर्स और स्मार्टफोन के एक निर्धारित कर दिया गया कि भाई उसका लोगो क्या था और लोगो क्या रहेगा। 5G स्टैंडर्ड के लिए IMT 2020 का नाम दिया गया है और अच्छी बात यह कही जा सकती है कि 5G के लिए विश्व की लगभग सभी प्रमुख कंपनियां उत्सुकता दिखाई दे रही है और उत्सुकता दिखाई भी देती है। और 2019 की बात करूं तो 2019 तक 5G नेटवर्क की शुरुआत करने का एक भरोसा दिया गया है और उसके बाद अभी 5G टेक्नोलॉजी स्टार्ट होने ही वाली है और स्टार्ट हो चुकी है ऐसा बोले, अर्थात आज से 13 महीने बाद ही इसकी घोषणा हो सकती है। आगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों ने जो यहाँ पर इकट्ठा की है ये थोड़ी बहुत बताऊं तो 5G सर्विस मानते हुए एक फ़ायदा यह है कि अब विश्व भर के ऑपरेटर्स इसके लिए नेटवर्क और रेडियो इंजीनियर इस पर कार्य करने में जुटे हुए हैं। एक PPP संस्था द्वारा अल्ट्रा फास्ट 5G नेटवर्क के लिए मानक तय करने के बाद अब फोन निर्माता और रेडियो क्यूमुलेटिव निर्माता अपने 5G प्रोडक्ट लॉन्च कर सकेंगे। ये 5G टेक्नोलॉजी के साथ एक इंडस्ट्री भी डेवलप होगी। सबसे अच्छी बात यह कही जा सकती है कि भारत इस बार 5G के लिए पहले से ही ऑलरेडी तैयार है क्योंकि टेक्नोलॉजी का काफ़ी और बढ़ावा हो गया है। एक बात करूं सबसे बड़ी इंडस्ट्री की, रिलायंस इंडस्ट्री की। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने भी घोषणा की थी कि रिलायंस जियो नेटवर्क 5G रेडी भी है और हम लोग काफ़ी उस पर सुधार भी कर रहे हैं। वहीं इसके विकास के लिए कंपनी ने सैमसंग से भी समझौता कर लिया है और समझौता इसलिए करना पड़ा क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट चल रही थी। वहीं एयरटेल भी इससे पीछे नहीं है। कंपनी ने 5G सर्विस और IT एप्लीकेशन के विस्तार के लिए नोकिया से भी समझौता कर लिया था और अभी समझौता ऑलरेडी कर लिया है। वैसे 2014 की बात करूं तो 2014 में भी NTT डोकोमो ने 5G के लिए परीक्षण शुरू कर दिया था। वहीं पर 5G सेवा 4G के मुकाबले भारत में लगभग 200 से 3 गुना वहाँ पर महंगी शायद हो सकती है और महंगी होगी भी क्योंकि उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी सुधार भी की है। 4G रिचार्ज में आपको लगभग 1 से लेके 2 GB प्रतिदिन डेटा मिलता था और डेटा मिलता है। वहीं पर 5G में आप लोगों लगभग 5 से लेके 10 GB प्रतिदिन डेटा वहाँ पर मिलने की संभावना की गई है क्योंकि यह काफ़ी तेज़ होगा। 5G टेक्नोलॉजी जो माना जाता है वो काफ़ी तेज़ होने वाला है, तो 1 GB डेटा आपको तुरंत शायद ख़त्म भी हो जाएगा। अब आगे एक बात करूं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में और थोड़ी डिटेल लूं तो 5G सेवा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज भी एक बड़ा हो सकता है कि इनके टावर बहुत ही पास लगाना पड़ता है क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट चल रही थी और फास्ट चलेगी। तो यह कहीं नहीं पाया जा सकता कि मानकर भी चलना पड़ेगा कि 2023 तक आपको सिर्फ और सिर्फ यह सेवा बड़े शहरों में भी देखने को मिलेगी और बड़े शहर वाले भी ये टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर सकते हैं। देखने को मिलेगा ये टेक्नोलॉजी कहाँ पर आ सकती है और वहाँ पर कहाँ पर स्टार्ट होगा। 5G के सामने एक और समस्या यह भी आजकल वाईफाई कनेक्शन लगभग हर घर में लग रहा है। तो एक बात ये भी हो सकता है कि भारत में इसे नई टेक्नोलॉजी को बहुत कम लोग पसंद करें क्योंकि एक बात तय है कि देखिए हर घर में एक वाईफाई तो ऑलरेडी अब आ चुका है। ऑफिस में भी आपको वाईफाई है और रेलवे स्टेशन पर भी आपको फ्री वाईफाई मिल रहा है। तो ये 5G टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करेगा वो भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क माना जाता है। बस स्टैंड पर भी आजकल वाईफाई टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है, तो आपको मिल रही
रही है तो हो सकता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग सुविधा रखें और वाईफाई कनेक्शन अब इस नए 5G टेक्नोलॉजी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिले तो लोग यूटिलाइज कर सकते हैं और डाटा भी अनलिमिटेड मिल सकता है। आगे एक नई बात करूं इससे पहले मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोलूँगा कि एक इनोवेटिव वीडियो दिखाए जिससे हमें पता चले कि 5G टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूटिलाइज होगा। The dream of building a self-reliant India is fueled by innovation and information and communication technologies, where the possibilities are beyond the limits of the sky. TRI has set many milestones in India's growth story. TRI is now celebrating 25 years of its contribution to the nation. Along with 75 years of independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav, the government led by Shri Narendra Modi has leveraged technology to enhance ease of living and encourage transparency in governance. We are using digital technology to transform lives in all sectors of governance, from health and welfare to inclusion and empowerment. Telecom sector has played a stellar role in realizing the mission of Digital India by empowering the citizens through advancements in digital communications. In the Regulatory Tracker Index of International Telecommunications Union, ITU, TRI satisfies the highest benchmark of maturity, establishing itself internationally as a progressive regulator. While crossing over many challenges successfully, TRI steered the connectivity revolution in India in the last 25 years, and the journey continues. 1,167 million total phone subscribers, per GB data cost at ₹10, over 906 private satellite TV channels, over 800 radio stations. Enhanced connectivity boosted the digital economy with a phenomenal growth of UPI transactions, crossing 5 billion per month, worth more than 9 trillion rupees. The revenue from the telecom sector is almost 6% of the GDP in 2021. And what makes us really proud is the fact that during the pandemic, the telecom sector enabled almost 35% of the GDP, showing how digital communication can overcome the steepest of obstacles. TRI's path-breaking steps have contributed to transformation in the delivery of telecommunication, broadcasting and cable services in the country. Infrastructure sharing reduced the cost of network deployment. One nation, one mobile number, achieved through mobile number portability. Tariff forbearance provided flexibility to service providers for innovative offers to consumers in a dynamic and competitive market. Digital addressable system brought in transparency and improved choice. TRI is a pioneer in the introduction of blockchain technology as a regulatory technology to curb the spam. Consumer protection and digital inclusion has been the cornerstone for the regulatory approach of TRI. TRI is looking to enable futuristic telecom services. These include machine-to-machine communication, convergence of broadcasting and telecommunications, holographic technology, augmented reality or virtual reality, quantum computing, digital twins, robotic collaborated factories, feed agriculture, rural industry, water management, health, education, civic management or entertainment. From robotic surgery to smart ambulances for enhanced preparedness for the healthcare sector. As the future awaits further technological advancements such as 6G, the time is not far off wherein citizens can experience the benefits of tactile connectivity, advanced security and automated driving experience. TRI intends to be at the forefront of another revolution in the making, taking India forward through telecommunication, effective regulation, ease of communication. तो मित्रों, देश विकास की ओर आगे कुछ कर रहा है तो कुछ सालों में आपको शायद फूड डिलीवरी भी ड्रोन से मार्फत आपको शायद मिल जाएगी।
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो कंट्रोल करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए और किस तरीके से मोबाइल टेक्नोलॉजी काम करेगी, उसमें 5G टेक्नोलॉजी काफ़ी कुछ ज़्यादा काम में आएगी। आखिरी में जाते जाते मैं 5G की और थोड़ी बहुत बात करूं तो टेक्नोलॉजी, जो 5G टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल की बैटरी बहुत ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फटाफट ये काम कर रहा है। 4G टेक्नोलॉजी उपयोग किया गया, जो अभी 5G मोबाइल यूटिलाइज कर रहे थे, या 4G टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल यूज़ होगा, उसमें भी आप जो 4G सिम देख रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इनमें जब 5G वाली सिम लगेगी तब इनकी बैटरी काफ़ी जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट तरीके से काम करेगा। जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में देश के 13 शहरों में 5G सेवाएं शुरू की गई है और की जाएगी। तब केंद्रीय और सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गत 19 मई को ITI के मद्रास में सफलतापूर्वक कॉल करके इसका परीक्षण भी कर लिया है और चुने हुए शहरों में इसकी टेक्नोलॉजी स्टार्ट भी कर दी जाएगी। वहाँ पर एक बात और एक डिटेल करूँ तो कंपनी अब सरकार की ओर से हरी झंडी का इंतज़ार कर रही है। आगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी दूं तो 5G नेटवर्क आने के बाद मोबाइल की दुनिया तो बदलेगी, साथ ही साथ सरकारी व गैर सरकारी ऑनलाइन सुविधाओं में भी काफ़ी कुछ कार्यप्रणाली में चेंजेस आ जाएगा, गुणवत्ता में और स्पीड में भी आएगा। टेलीकॉम विभाग की माने तो 5G सेवाओं को पहले चरण में अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर, दिल्ली और लखनऊ, हैदराबाद, पुणे जैसे शहरों में ये शुरू कर दिया जाएगा। जाते जाते और एक डिटेल थोड़ी बहुत बताऊं तो अभी कुछ ही दिनों पहले तक 5G को भविष्य की टेक्नोलॉजी कहा जाता था, परंतु यह तकनीक अपने दरवाजे तक आ चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार इसी तकनीक में अब डेटा ट्रांसफ़र की दरअसल लगभग बात करूं तो 20 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है। तो मित्रों, इंतज़ार जल्द ही खत्म शायद हो जाएगा और हम लोग 5G टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करते करते हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ मैं फिर से मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। लहरों से डरकर नौका